You all in logical reasoning playlist. Today we are going to discuss about what is your statement and arguments. There are the two types of arguments. First one is your strong and second one is your weak. In your question, they will repeat again and again many times what is the which one is your strong argument or which one is not. That's why I am teaching you the difference between the strong and weak. Just clear to some points that will define it what is the strong and which one is your weak arguments. If I talk about in the strong argument, there is a point number first which is related to the development. So you have to keep in mind whenever we're talking about development, any kind of development, advantages and development, you have to go through the strong. Whenever you guys have the experience truth, you will go with the strong argument. And when you have a universal truth that a life changes is the law of nature, so it is a universal truth like 1 plus 1 is equal to 2. This is a universal truth. When these kind of statements comes, you will go with the strong argument, and in an analyzed truth you also will go in your strong argument. But what if I talk about how will you find out this is a weak argument and you will skip that statement and argument? So this is simple, guys. If your explanation is half, it means like there are something statement that is has written, but it is a half. Then you have to consider it. It is a weak argument. And if that statement contains words like each, nothing, every, all, only, no, no one, none, these kinds of work, if you use, it means it is a weak argument. If they do comparison, anything, any kind of comparison, like you compare India with the USA and you are comparing India with China, so this is the kind of comparison, and any field kind of comparison, it will also go in your weak argument. In the assumption, if you can assume something that it will happen in the future, it will happen something else, if I do something that will happen, so this kind of assumption will also come in your weak arguments. And ambiguous is just like a contradiction means like virodhabhas, we can say virodhabhas, it happens, or we can say contradiction is happens mainly when you are something argument and you just say another opposite thing of that argument, that like a contradiction that you will generate between them. So that kind of contradiction is known as the ambiguous. So this is the ambiguous statement also come in your weak arguments. ठीक है. नाउ आई विल स्पीक इन हिंदी सो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. सो लिसन केयरफुली, ध्यान से. आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की बात जब भी आ जाएगी वो स्ट्रॉन्ग के अंदर, किसी भी नेशन की सिक्योरिटी, कैसी भी सिक्योरिटी की बात आ गई तो वो स्ट्रॉन्ग के अंदर, एडवांटेज की बात आ गई तो स्ट्रॉन्ग के अंदर, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो स्ट्रॉन्ग के अंदर, वीक के अंदर हाफ एक्सप्लेनेशन हो गया, ये वर्ड यूज कर लिए, कंपेरिजन कर लिया आपने, अजम्पशन ले लिया, या फिर आपने एम्बिगुअस चीज यूज कर ली, यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात कर ली, तो आपका ये चीज वीक आर्ग्यूमेंट के अंदर चल जाएगा और आप इजीली स्किप कर सकते हो उस आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग को चूज करना है. तो मूव ऑन करते हैं. लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेट एंड आर्ग्यूमेंट. द क्वेश्चन इज गिवन, द स्टेटमेंट इज दैट द शुड देयर बी ए स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर होना चाहिए कि यूनियन बनाना चाहिए क्या. अगर ऐसा होगा तो देखो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट सेज नो, दिस विल क्रिएट ए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस. ओके. यस. सेकंड वन सेज इट इज अ वेरी नेसेसरी स्टूडेंट आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स. सो देखो अपने आप में दोनों ही, पहली बात तो हम कहते हैं, क्लियर करते हैं, दिस इज लिंक्ड विद दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद इट, राइट. सो देयर इज सम एडवांटेजेस. एडवांटेज व्हाट? द फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर. डिसएडवांटेज वाज what is the disadvantage? The political atmosphere in the campus. But the both point are strong in this case. Why? Because it is also the bad impact on the political atmosphere in campus, and also it will help to secure the future as a political leader for the students. So we will choose both of them as a strong. So answer answer E is correct. Both one and second are strong, because obviously it will generate the political atmosphere in the campus, and also it will help us as a political leader in future. So we select the answer number. We will mark the answer number E is your correct answer. Let's move on question number 2. The question number 2 says, should India encourage exports when the most things are insufficient for internal use itself? ओके. नाउ सी, वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आर इम्पोर्ट. अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें क्या है, एक्सपोर्ट से पैसे कमाने, कुछ एक तरह से ये बोल रहा है, ठीक है, इंटरनल यूज इटसेल्फ. तो यहाँ पर क्या होगा, अपन फॉरेन एक्सचेंज पे करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे इम्पोर्ट के थ्रू, ठीक है, इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं एडवांटेज बढ़ेगा अपना इंडिया के प्रति, ठीक है. तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग हो गया. तो फर्स्ट वन इज आर स्ट्रॉन्ग. सेकंड वन बोल रहा है इवन सिलेक्टिव एंकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज. क्या आपको लगता है किसी चीज को एंकरेज करते जाओगे तो वो लीड करेगा शॉर्टेज की ओर?
नहीं करेगा, इतना इफेक्ट नहीं डालता, तो ये वीक की कैटेगरी में आ जाता है और यहाँ पे इवन भी यूज कर लिया गया है। तो आप क्या बोलोगे कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट या कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बाकी दोनों बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, शुड इंडिया मेक एफर्ट टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि हार्नेस सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात करूं तो पहली बात तो ये बहुत ही कम रेट में हो जाता है, सबसे अपन को पता है सोलर एनर्जी बहुत ही सस्ती पड़ती है। तो पहली बात करते हैं कि यस द मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स यूज एट द प्रेजेंट इज एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल यानी कि यहाँ पर निष्कासित बढ़िया होता है, बिल्कुल होता है। ये चीज एक स्ट्रॉन्ग के केस में आ गई, मोस्ट ऑफ यूज कर लिया इन्होंने, इसलिए एक तरह से स्ट्रॉन्ग के केस में आ गया। एवरी यूज करता तो वीक में चला जाता। नाउ सेकंड पॉइंट से द हार्नेस सोलर एनर्जी रिक्वायर लॉट ऑफ कैपिटल। क्या आपको लगता है लॉट ऑफ कैपिटल की जरूरत है सोलर एनर्जी के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, चीप है, इतना महंगा नहीं है। विच इंडिया लैक इन, इंडिया को लैक करते इतना नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पे सेकंड वाला वीक हो जाता है और फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग निकल जाता है। तो अगेन आंसर ए मार्क करोगे आप, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। Let's move on question number 4. Should the government stop spending huge amount of money on international sports? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, पहले तो ये सोचो, ठीक है, फिर पॉइंट आर्गुमेंट पे आओ। दिस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ द पुअर, ठीक है, एंड दो नो स्पोर्ट्स पर्सन विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर ये चीज देखने लायक है, ऐसा ही होगा बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन फिर जाएगा ही नहीं इंटरनेशनल प्ले के लिए, अगर उनकी मनी कम कर दिया आपने तो वो हड़ताल स्ट्राइक जो भी वोटेवर वो कर सकते हैं। बट यहाँ अपन ये चीज तो स्ट्रॉन्ग में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को यूज कर लिया है। और साथ ही साथ अपन बता सकते हैं फर्स्ट वाले में इन्होंने बोला है कि इस मनी को आप है ना पुअर को लिफ्ट करने अपलिफ्टिंगमेंट में काम रखते हैं, यानी कि उनको आगे डेवलप करने में काम रख सकते हो। लेकिन पूरी बात नहीं की है यहाँ पर, ये हाफ एक्सप्लेनेशन है कि मनी को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो फॉर द पुअर, बट यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया, तो ये कैटेगरी गई वीक के अंदर और ये वाला गया आपका स्ट्रॉन्ग में। दैट्स व्हाई बी आप मार्क करेंगे। ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाता है। आया भाई साहब दिमाग में क्लियर? ये क्या है, हाफ एक्सप्लेनेशन यूज करने का, हाफ ये एक्सप्लेनेशन, पूरा नहीं बताया इन्होंने। यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और कुछ चीजें बता के इन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया अपने आर्गुमेंट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, that should adult education program be given priority over compulsory education program? Okay, no, it will help in success of compulsory education program. Yes, it will help to eliminate the adult इलिटरेसी। बिल्कुल एडल्ट इलिटरेसी को एलिमिनेट करेगा ये। सॉरी गाइज एक सेकेंड, ये रहा, हाँ बिल्कुल यही करेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर पावरफुल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वीक का कोई भी केस नहीं दिख रहा है, ना कंपेयर का दिख रहा है, ना कुछ और कंपल्सरी का दिख रहा है, ना एम्बिगुअस का दिख रहा है, ना कुछ और का दिख रहा है। बट यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इट विल आल्सो हेल्प इन सक्सेस ऑफ कंपल्सरी यानी परमानेंट होना ही चाहिए एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये चीज यहाँ पर वीक की केस में आती है कि जरूरी नहीं है ऐसा केस किया जाए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वीक में चला गया, ये वाला स्ट्रॉन्ग में चल गया। तो आंसर भी आपका करेक्ट हो गया नहीं हो गया गाइज? मुझे बताइए आपका आंसर करेक्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, 20 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर ये निकाल के आगे निकलना है, ठीक है, ताकि आप बाकी क्वेश्चनों के ऊपर टाइम दे सको। आपको इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 4-5 टॉपिक बड़े ही इजी है स्टेटमेंट से रिलेटेड, या आपके मान लो सिलोजियम्स वाला है जो मैं आगे बढ़ाऊंगा अपकमिंग वीडियोज में, वो देखना मजा आएगा आपको। कैन पोल्यूशन भी कंट्रोल्ड? बिल्कुल क्या जा सकता है पोल्यूशन कंट्रोल? तो इसका ऑप्शन क्या जाए, यस इफ एवरीवन रियलाइज द हजार्ड्स इट में क्रिएट एंड कोऑपरेट टू गेट रिड ऑफ पोल्यूशन में कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपको चीजों को देखना पड़ेगा और कोऑपरेट से छुटकारा लेना पड़ेगा। नो द क्राउडेड हाईवे फैक्ट्रीज इंडस्ट्री एंड इवन ग्रोथिंग पॉपुलेशन ईगर टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज और बियॉन्ड कंट्रोल। तो दोनों ही चीज चाहिए, दोनों ही आपस में स्ट्रॉन्ग चीजें बता रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारे पॉइंट देकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना दिया, इवन अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर लिया, वो कंसिडर कर लिया इन्होंने। तो ये स्ट्रॉन्ग बन गया, ये भी स्ट्रॉन्ग बन गया। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो अपन कैसे कंपेयर करने वाले हैं? तो यहाँ पर बोले या तो ए लगाओ या बी लगाओ, दोनों से ही कंट्रोल किया जा सकता है, तो आइदर वन और सेकंड, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत यूज नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पर इन्होंने बोला कि या तो कोऑपरेट से गेट रीड ऑफ कर लो, अदरवाइज आपको ये सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन टिक लग गया। आपको ना आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। करें, आपने किया होगा ये वीडियो को पॉज, देखते हैं। शुड द प्रेस्टिजियस पीपल, ठीक है गाइस एक सेकेंड, शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेट विद द स्पेशल ट्रीटमेंट? करना चाहिए कैसा? मैं तो नहीं मानता भाई। यस, द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली। अरे माय गॉड, अरे यार वीआईपी बेटा, ऐसा भी होता है क्या? सेकंड वन क्या कहता है, नो इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। बिल्कुल सही बात है यार, हमारा न्याय, हमारा कानून, हमारा डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको इक्वालिटी में रखो। तो बी एकदम स्ट्रॉन्ग, और ये सब फर्जीवाड़ा है फर्स्ट वाला, क्योंकि इंटेंशनली नहीं करता। ये कौन सी बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यानी बी को मार्क कर लो, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, आपको सारा आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। करेक्ट क्वेश्चन, शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान? ऐसे कैसे दे दें भाई? देखिए पहला कहता है नो कश्मीर इज ब्यूटीफुल स्टेट, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए क्योंकि कश्मीर एक सुंदर राज्य है और बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज करता है इंडिया के लिए। लेकिन सेकंड वन कहता है यस इट वुड हेल्प सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको लगता है कि वो सेटलमेंट चाहते हैं? अगर चाहते तो बहुत पहले ये चीज हो जाती ना। समझ पा रहे हो? गिविंग अवे ए पीस ऑफ द लैंड अनरीजनेबल एंड अनकंडीशनली इज नो सॉल्यूशन टू सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट, राइट? तो अपन इस तरह से सेटल नहीं कर सकते गाइज, बिना कोई कारण, बिना कोई रीजन। यहाँ पे दिया भी नहीं है, अधूरा है ये एक्सप्लेनेशन, वीक में पटको साले को। आगे, हाँ कश्मीर बहुत अच्छा चीज़ है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाओ इसको, क्योंकि ये ब्यूटीफुल स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। तो वन इज ए स्ट्रॉन्ग, दूसरा नहीं है, ए पे टिक करो, आगे बढ़ो गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? शुड कॉलेज बी गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन द इंडिया? Yes, colleges are in a better position to access the student performance and therefore degree will be more valid. Second one कहता है कि it is a important to think there will be no nepotism corruption in awarding degree by college. देखो यहाँ पे तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है, तो ये आ गया वीक के अंदर। फर्स्ट वाला कहता है कॉलेज आर द बेटर पोजिशन टू एक्सेस। हमें नहीं लगता अभी एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो गया, तो ये भी एक तरह से वीक में आ गया। दोनों ही वीक में है तो डी लगा दो, नाइदर वन नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। भाई सिंपल है क्वेश्चन को करना, कोई टफ नहीं है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 आर्गुमेंट दिए जाएंगे, फिर इनमें से आपको डिसाइड करना कौन सा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले, शुड इंडिया गोइंग फॉर द कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर? पहली बात समझ में आती है, ठीक है। एंड यहाँ बोलता है यस इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी द वर्क, ठीक है। इट विल बी इंजस्टिस टू द मोनूमेंटल ह्यूमन रिसोर्स विच एट द प्रेजेंट अंडर, ठीक है, यूटिलाइज्ड। नो कंप्यूटर डिमांड्स एट द लॉट ऑफ द मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी। ये गलत बात हो गई, ये तो साफ दिख रहा है, मनी वेस्ट नहीं होता है कभी भी कंप्यूटराइजेशन के केस में खासकर। व्हेन द एडवांस कंप्यूटर आर इंट्रोड्यूस कंप्यूटर इन द एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड? यहाँ एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले वर्क की एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ेगी, तो ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग के केस में चल गया। ये चीज़ मैं देखो, ये चीज़ अधूरी है क्योंकि इन्होंने पूरा कंप्लीटली नहीं बताया है क्या होगा एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स का, तो ये वीक में आ जाता है। थर्ड वाला वैसे ही गलत हो गया, तो यहाँ मेरे ख्याल से ओनली एक ही है, वो है ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। फोर्थ वन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्हेन एडवांस कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड, हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड? ये वीक हो गया गाइस, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो गया। अगर एक कंट्री का इंडिया के साथ कंपैरिजन किस में होता है? वीक में होता है, तो फोर्थ वाला भी वीक में गया, इसलिए मैंने बोला कि ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने बताया था कंपैरिजन, अजम्पशन, एम्बिगुअस, इसलिए वीक के केस है, वीक में अपन को नहीं जाना है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, शुड ऑल द टीचर्स बी डिबार्ड फ्रॉम द गिविंग प्राइवेट ट्यूशन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, होमवर्क के अंदर है ये क्वेश्चन आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, इसका हिंट आपको देखते ही पता चल जाएगा, तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।